آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 27 اکتوبر 2025 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان نے مٹایا اسرائیل کا بھوکال، کہا اب جو اسرائیل کے حق میں بولے گا وہی سیاست سے باہر ہوگا۔ اسرائیل نے ترکی کی فوج کو غزہ میں گھسنے سے روکا، ایردوغان سے دشمنی یا نیتن یاہو ہے انسیکیور۔ غزہ میں سیز فائر کا لبنان جیسا حال، امریکہ کی دلیل بن گئی ہیڈ لائن۔ حماس نے بین گویر کی وجہ سے کی تھی ہوسٹیجز کی پٹائی، رہا ہوئے اسرائیلی ہوسٹیج نے آپ بیتی سنائی، نفرتی منسٹر پر انگلی اٹھائی۔ ایران اور عمان کی رشتوں کو ملی نئی رفتار، پزشکیان بولے ہر میدان میں بڑھائیں گے تعلقات۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوتن کو بڑی دھمکی، کہا جنگ روکو ورنہ ہماری نیوکلیئر سب مرین روس کے ساحل پر ہے موجود۔ یہ تھیں کچھ بڑی ہیڈ لائنز، ان کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک ایسی بات کہی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے بھوکال کا غبارہ پھوٹ چکا ہے اور اس کی حمایت کرنے والوں کا پولیٹیکل کریئر چوپٹ ہو سکتا ہے۔ بھلے ہی ٹرمپ نے یہ بات ہنستے ہوئے کہی، لیکن اس کے معنی اور پیغام بہت سنجیدہ ہے۔ یہی نیتن یاہو کے ظلم کا حاصل اور وصول بھی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ سنیے کیا کہا۔ ٹرمپ نے کہا، میں اس دور میں بڑا ہوا تھا جب سیاست کا پورا نقشہ اسرائیل کے ارد گرد گھومتا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بول دیتا تو اس کی سیاست ختم سمجھی جاتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ آج اگر کوئی اسرائیل کے حق میں ایک لفظ بول دے تو وہی سیاست سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ڈائلاگ، یہ 2 لائن کا جملہ اسرائیل کے الگ تھلگ ہونے کی، اسرائیل کے آئسولیٹ پڑنے کی پوری داستان بیان کر رہا ہے کہ غزہ میں 2 سال کی جنگ میں اس نے تباہی تو زبردست مچا لی، لیکن اس نے بہت کچھ کھو دیا۔ پوری دنیا میں اپنا سپورٹ 1-2 لوگوں کو چھوڑ کے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، باقی سب سے اس نے سپورٹ اپنا کھو دیا۔ بڑھتے آنکھیں۔ غزہ میں ترکی کی فوج کی انٹری مشکل ہو گئی ہے۔ آج لگاتار تیسرے دن اسرائیل نے امریکہ سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ غزہ میں ترکی کی فوج کی موجودگی کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہوگی۔ پچھلے 2 دن سے ہم یہ خبر آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن 27 اکتوبر کو بھی جو بیان آیا وہ سن لیجئے۔ اسرائیل کے فورن منسٹر گیدون سار نے پیر کو بوڈاپیسٹ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایردوغان کی حکومت اسرائیل کے خلاف دشمنی پر اتری ہوئی ہے، ایسے میں ترکی کی فوج کو غزہ میں گھسنے دینے کی اجازت دینا ناممکن ہے۔ اس نے کہا، گیدون نے، کہ ہم نے یہ بات اپنے امریکی دوستوں سے صاف صاف کہہ دی کہ ترکی برداشت نہیں کریں گے غزہ میں۔ دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن پلان کے تحت ایک انٹرنیشنل فورس بنائی جا رہی ہے جس کا مقصد 2 سال پرانی جنگ کو ختم کر غزہ میں ایک ٹکاؤ سیز فائر قائم کرنا ہے، اور اسی میں ترکی کے فوجی بھی شامل ہوں گے اس انٹرنیشنل فورس میں، یہ مانا جا رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سے ملک اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہوں گے اس فورس میں؟ لیکن اس فیصلے سے پہلے ہی اسرائیل کے لیے ترکی اس لسٹ سے باہر ہے۔ غزہ جنگ کے دوران ایردوغان اور اسرائیل کے رشتے پوری طرح سے بگڑ گئے تھے۔ ترک صدر نے اسرائیل کے ہوائی اور زمینی حملوں کو جینوسائیڈ بتایا تھا۔ ترکی چاہتا ہے کہ غزہ کا پورا کنٹرول فلسطینیوں کے ہاتھوں میں ہو، جبکہ اسرائیل اپنی پکڑ ڈھیلی نہیں کرنا چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ غزہ اب صرف ایک علاقہ نہیں، مڈل ایسٹ کی نئی تخت شطرنج بن چکا ہے۔ غزہ میں سیز فائر کا حال اب لبنان جیسا ہو گیا ہے، اور اس بے قراری کو امریکہ کی کھلی حمایت مل گئی ہے۔ اس خبر کو ذرا غور سے سنیے گا۔ غزہ میں آج پھر اسرائیل کے حملے میں ایک یا ایک سے زیادہ شخص کے مارے جانے کی خبر آئی، لیکن اس پر امریکہ کا آیا بیان حیران کر گیا۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ، یا یوں مان لیجیے وہاں کے ودیش منتری مارکو روبیو نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کا حالیہ حملہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ نہ، روبیو کے مطابق اسرائیل نے اسلامک جہاد کے ایک ممبر کو نشانہ بنایا تھا، جس پر اسرائیل کے خلاف حملے کی سازش رچنے کا الزام تھا، جبکہ اسلامک جہاد نے اس الزام کو سرے سے نکار دیا۔ روبیو نے کہا، ہم اسے سیز فائر توڑنا نہیں مانتے، اسرائیل کو اپنے بچاؤ کا پورا حق ہے۔ یعنی اب سیز فائر کا مطلب گولیوں کا رکنا نہیں، بلکہ صرف واشنگٹن کی منظوری کا نام رہ گیا ہے۔ ہم نے جو بچپن سے پڑھا، جو سنا، سیز فائر، فائرنگ بند کرو،
गोली बारी का रुकना, कोई गोली नहीं चलना। अब गोली चुकंदर और भिंडी के बीच थोड़ी ना चल रही थी, दुश्मनों के बीच चल रही थी, तो उन्हीं के बीच तो सीज फायर होगा। फिर आप कहते हैं सेल्फ डिफेंस में। अमेरिका, मिस्र और कतर की सिफारिश से हुआ ये समझौता अब उसी के हाथ में है जिसने इसे सबसे पहले खोखला किया, यानी सुपर पावर। दोस्तों, गजा में अमन की तर्जुमानी अब उस मुल्क के हवाले है जो हर बम गिरने पर सेल्फ डिफेंस की याद दिलाता है। सच कहें तो सीज फायर जिंदा है, मगर उसकी रूह मर चुकी है। फिर कहूंगा कि कहीं गजा का हाल लेबनान वाला ना हो जाए। गजा में मिस्र के एक्सपर्ट्स की टीम आज भी हमास के साथ मिलकर मारे गए इस्राएली होस्टेजेस की लाशों की तलाश कर रही है। लगातार ये दूसरा दिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 लाशों की खोज के लिए मिस्र ने भारी मशीनरी और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स गजा में उतार दिए हैं, जो कल रात ही गजा पहुंचे थे। इस्राएल ने हमास, मिस्र और रेड क्रॉस की टीमों को इजाज़त दी है। फिर सुनिए, कल बताया था इस्राएल ने हमास, मिस्र और रेड क्रॉस की टीमों को इजाज़त दी है कि वो इस्राएली कब्जे वाले येलो लाइन के उस पार के इलाके में जाकर तलाश कर सकें उन होस्टेजेस की जो टनों मिट्टी के नीचे दफन है। अब तक हमास 18 लाशें और 20 जिंदा होस्टेजेस इस्राएल को लौटा चुका है। ये सिलसिला 10 अक्टूबर के सीज फायर के बाद शुरू हुआ था। दूसरी तरफ इस्राएल ने भी 195 फलस्तीनियों की लाशें लौटाई हैं, जिनमें से कई पर शदीद तशद्दुद के निशान पाए गए हैं। मामले पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाशों की वापसी सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि सियासी दबाव का हिस्सा बन चुकी हैं, जहां अमेरिका और इस्राएल दोनों हमास पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकि बाकी बॉडीज भी लौटाई जाएं, वरना समझौता खत्म माना जाएगा। आयरलैंड की सर्द हवा में आज एक तपिश है, इंसाफ की, हिम्मत की और उस सच की तपिश जिसे बड़े मुल्क दबा नहीं पाए, ठंडा नहीं कर पाए। कैथरीन कनॉली, वही आज़ाद ख्याल और बेबाक सियासतदां जिन्होंने बरसों पहले और बाद तक इसराइल को टेरर स्टेट कहा था, अब आयरलैंड की प्रेसिडेंट बन गई हैं वो कैथरीन ने पूरे 63% वोट से ज़बरदस्त फतह हासिल की है। सेंटर राइट ताकतें धूल चाटती रहीं और डबलिन ने एक नया पैगाम दिया, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। 68 साल की कैथरीन ने जीत के बाद कहा, मैं अमन की आवाज़ बनूंगी मगर जुल्म के सामने कभी खामोश नहीं रहूंगी। सिन फेन और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर जिस औरत को आगे बढ़ाया, उसने यूरोप की सियासत में एक लकीर खींच दी, अमन की लकीर, मगर बिना झुकाव के। वो जानती हैं कि गजा के मलबे के नीचे सिर्फ ईंटें नहीं, बच्चों के ख्वाब दबे हैं। वो जानती हैं कि अमन का मतलब सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि सच्चाई को बोलने की हिम्मत है। इसराइल को उनके चुने जाने से गहराइयों तक तकलीफ पहुंची है। आज डबलिन की गलियों में लोगों की जुबान पर एक ही बात है, अब सदर के महल से भी फ़लस्तीन की आवाज़ उठेगी। आयरलैंड, जिसने खुद सदियों की गुलामी झेली, अब उन लोगों के लिए बोल रहा है जो आज भी कब्जे में हैं, और यही वो सबक है जो बताता है कि जो दर्द खुद झेल चुका है हो वही दूसरे के जख्म समझता है। आयरलैंड ने पिछले 2 साल तक गजा की आवाज़ बहुत मजबूती से उठाई और आगे भी उससे यही उम्मीद बनती नजर आ रही है। इसराइल के कब्जे वाले यरूशलेम में इस्राएली सेटलर्स ने मंडे को एक बार फिर अल अक्सा मस्जिद के अहाते में घुसकर तिलमुदी रस्में अदा की, जबकि ये तारीखी मकाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस जगहों में से एक है। सेटलर्स की घुसपैठ इसराइली पुलिस की मौजूदगी में हुई, जो न सिर्फ मुसलमान नमाजियों को रोके रखती है बल्कि यहूदियों को मस्जिद के अंदर रस्में निभाने की खुली छूट भी देती है। यहाँ यूएन के चार्टर के हिसाब से और दुनिया के उसूलों के हिसाब से यहूदियों का आना मना है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की इस हुकूमत में ये बार बार हो रहा है। फ़लस्तीनी इदारों ने इसे अल अक्सा मस्जिद की तौहीन और मजहबी जंग भड़काने की साजिश करार दिया है। गजा सीज़फायर डील के तहत कुछ दिन पहले एक इस्राएली होस्टेज रिहा हुआ जिसका नाम है बार कुपरस्टीन। इसने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि हमें हमास ने बहुत पीटा और हमसे कहा ये पिटाई, ये कुटाई बेन गुविर की वजह से हो रही है। कुपरस्टीन के मुताबिक कैद के दौरान उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो 1 महीने तक चल नहीं सके। उसने बताया कि हमास के लड़ाकों ने कहा, तुम्हारा मिनिस्टर बेन गुविर जेल में जाकर फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, लिहाजा अब तुम भुगतो। द टाइम्स ऑफ इसराइल, जो इसराइल का अखबार है, उसकी इस रिपोर्ट के मुताबिक कुपरस्टीन ने अपने इंटरव्यू में गुस्सा जताते हुए कहा, बेन गुविर फ़लस्तीनी कैदियों के साथ सख्ती करके शेखी बगाड़ता है
और उसी की वजह से हमारा हाल बदतर हो गया, हमें बहुत कूटा गया। कुपस्टीन ने कहा, वो सरकार में है बेन ग्विर, हमारी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने हमें भुगतने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ बेन ग्विर ने प्रेस पर इल्जाम लगाया कि मीडिया हमास की साइड ले रही है, यानी अब इसराइल के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि अपने ही मिनिस्टर की नफरत ने होस्टेजेस की जान खतरे में डाल दी थी। ईरान और ओमान के रिश्तों में नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अरब मुल्क ओमान के साथ साइंस, इकनॉमी, तहजीब, समाज और सियासत हर मैदान और शोबे में रिश्ते मजबूत करने को तैयार है। तेहरान में ओमानी वजीर दाखिला हमूद बिन फैसल अल बुसैदी से मुलाकात के दौरान पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान और ओमान के ताल्लुकात भाईचारे, एहतराम और नेक नियति पर कायम हैं और दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, चाहे हालात कितने ही पेचीदा क्यों ना हों। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती सिर्फ पड़ोसी होने की नहीं, बल्कि एतबार और ताउन की मिसाल है। ये बयान ईरान के प्रेसिडेंट का है। ईरान के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बयान है। वो लोग जो ये बताते हैं कि ईरान और अरब ममालिक के बीच खटास है, चाहे इधर क्यों वो उधर क्यों, वो सुन ले पेज़ेश्कियान क्या कह रहे हैं कि ओमान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है और ईरान ओमान के साथ रिश्ते और गहरे करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, बेदार रहिए। सोशल मीडिया बहुत अनसोशल है, यहाँ सच से ज़्यादा झूठ है। सच पढ़ा सुना कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सुन लीजिए जो पुतिन को दी गई है। कहा गया है कि जंग खत्म करो वरना हमारी न्यूक्लियर सबमरीन रूस के साहिल पर मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज रूस पर सीधा प्रेशर डालते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की जंग खत्म करनी चाहिए, ना कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों का टेस्ट करना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन, एक न्यूक्लियर पनडुब्बी रूस के साहिल के करीब तैनात है, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी सिचुएशन का जवाब देने के लिए तैयार है। ये बंद लफ्जों में किसी हमले के बदले में हमले की धमकी मानी जा रही है। ये बयान उस वक्त आया जब पुतिन ने इतवार को ऐलान किया कि रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब टेस्ट कर लिया है, जो 14 घंटे आसमान में रही, 15,000 किलोमीटर उड़ती रही। ये वो हथियार कहला रहा है जिसे रूस हर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाला बता रहा है और कह रहा है कि हम इसे जल्द तैनात भी करेंगे। रूस ने ट्रंप के बयान पर कहा कि हम भी अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, ट्रंप की धमकी के बाद जंग के मैदान से लेकर समंदर की गहराइयों तक अब टकराव न्यूक्लियर पावर शोडाउन की शक्ल लेता दिख रहा है। रूस से एक और खबर है। रशिया ने एक दावा किया है कि उसकी फौज ने यूक्रेन के 3 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। यह कदम ऐसे वक्त पर आया है जब अमन बहाल करने की कोशिशें ठप पड़ी हैं और जंग फिर से तेज होती दिख रही है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ज़ापोरिज़िया रीजन में 3 गांव रूस के कब्जे में आ गए हैं। रूस की फौज अब मैदान में अपनी बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि यूक्रेनी मोर्चे पर थकान और हथियारों की कमी साफ झलक रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात के लिए तैयार हैं, अगर किम चाहें तो। एशिया दौरे पर निकले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरी किम जोंग उन से हमेशा अच्छी बनती रही है। अगर वो मिलना चाहें तो मैं साउथ कोरिया में मौजूद रहूंगा। एयरफोर्स 1 पर सफ़र के दौरान सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट से बात करते हुए ट्रंप ने इशारा दिया कि वो अपनी साउथ कोरिया विजिट के दौरान किम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं। जब पूछा गया कि क्या वो इसके लिए अपना दौरा बढ़ाएंगे, नॉर्थ कोरिया जाएंगे, तो ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पर सोचा नहीं, मगर जवाब शायद हाँ ही होगा, मैं दौरा बढ़ा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। किसी को आवाज़ सुनने में दिक्कत आई हो तो आपको पता है कि बहुत मुश्किलों से बोला जा रहा है। हाँ, मुझे डॉक्टर ने कल बताया है कि ये जो इन्फेक्शन, ख़ास तौर से मैं दिल्ली NCR में हूँ, तो ये बताया ये एक नए वायरस का वेरिएंट है और उन्होंने कहा कि आप लोगों को बताएं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहूँ। और उन्होंने कहा कि आदिल भाई, आप कितनी भी दवा खा लीजिए, 10 दिन से पहले आपको राहत नहीं मिलने वाली। वो मुझसे छोटे उम्र में तो आदिल भाई कहते हैं, वो मुझे जानते भी हैं, वो देखते भी हैं।
تو انہوں نے کہا 10 دن سے پہلے راحت نہیں ملنے والی، لہٰذا دوا تو کھاتے رہیے لیکن احتیاط بھی بہت رکھیے۔ دلی NCR میں تو اسموگ دیوالی کے بعد اور بڑھ گیا ہے، اور موسم بھی ہے اسموگ والا، تو آپ لوگ بھی اپنا دھیان رکھیں۔ کھانسی واسی آئے تو فوراً دکھائیے، یہ خطرناک ہو سکتی ہے لیکن جھن لیوا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔